Good morning, church. Today is the first day of our prayer and fasting, and I'm really excited about it. आज पहला दिन है उपवास प्रार्थना का और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। And indeed, what my wife was praying, it's so true that God is coming and for which God is preparing His bride in a very, very unique way. He's cleansing us, He's building us, He's getting us ready for His arrival. और जो मेरी पत्नी प्रार्थना कर रही थी ये सच है कि खुदा अपने दुल्हन को स्वच्छ कर रहे, शुद्ध कर रहे, तैयार कर रहे, क्योंकि वो आने वाले हैं और उसके आगमन के आगे वो हमारी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। Amen. Amen. So, today what God has laid in my heart is a very strong message. It's called peace. और प्रभु ने जो वचन मेरे आत्मा में दिया है वो है शांति। आज का वचन का शीर्षक है परमेश्वर की शांति। We need this peace. हमें ये शांति की जरूरत है। If we don't have this peace, we will be scattered, confused, fearful, and defeated. और अगर हमारे अंदर ये शांति नहीं होगी तो हम तितर बितर हो जाएंगे, हम शांति खो देंगे, हम विचलित हो जाएंगे, हम परेशानियों में घिर जाएंगे। You know, the devil is watching and he wants to take away the peace from our life. और शैतान निरंतर हमें देख रहा है और वो चाहता है कि हम अपने मन की शांति खो दें। You know, if you lose your peace, you lose your entire, focus, your mind, your thoughts, your emotions, everything gets so scattered and nowhere you would be able to be successful. और जब आप अपने मन की शांति को खो देंगे, आप देखेंगे आप कोई भी काम में मन नहीं लगा पाएंगे, कोई भी चीज़ आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और आप का जो स्थिति या जो पावर होना चाहिए गॉड में वो आप खो देंगे। You will never get success. सफलता भी नहीं आएगा अगर आपने अपने मन की शांति को खो दिया। It's very important. इसलिए मन की शांति, परमेश्वर की शांति बहुत गुरुत्वपूर्ण है हमारे जीवन के Romans लिए। chapter 16 and verse 20. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचला देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। So it's very clear. This verse is very clear where it says the enemy wants to take away our peace. और ये वचन बिल्कुल साफ कहता है कि शत्रु तुम्हारे शांति को ले लेना चाहता है। You know, he wants to take away your joy because along with peace there is a joy. और जब शांति आता है तो शांति के संग आनंद भी आता है। I'm talking about this is eternal peace, eternal joy. This is a joy not from the world. This is the joy from heaven, from God. और ये जो आनंद आता है ये परमेश्वर से आता है, स्वर्ग से आता है। Because peace stabilizes us. क्योंकि शांति हमें स्थिरता देता है। Peace makes us strong, stable. और शांति हमें दृढ़ और स्थिर बनाता है। But the enemy wants to take it away, hijack it, kidnap it. लेकिन शैतान ये शांति छीन लेना चाहता है, हाईजैक कर लेना And that's चाहता the reason है। the Bible says the God of peace will soon crush Satan under my feet, under your feet. That's what the Bible says. और इसलिए बाइबल साफ कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे हमारे पांव के नीचे कुचलेंगे। Because why? Just imagine, just visualize, a snake is coming and what would the snake do? एक सांप आ रहा है, सांप क्या करेगा आपको? You will say the snake will bite me. आप कहेंगे सांप मुझे डसेगा। No. In this context, the snake is coming and snake is trying to take your peace. और यहाँ पे ये सांप है जो तुम्हारी ओर आ रहा है और तुम्हारी शांति को वो ले लेना चाह रहा है। If somebody is snake bitten, today is not a big task. You can go to the hospital. They will give you injections and you would be fine. Not many people die out of a snake bite today. और आज के युग में सांप से अगर कोई सांप के जहर उसके शरीर में जाता है तो वो मरता नहीं है, वो अस्पताल जाता है और वो बचा लिया जाता है। But what happens if your peace is taken away? लेकिन अगर आपकी शांति को छीन ले तो फिर कहाँ उसका इलाज है? Hospital cannot heal you. अस्पताल उसे चंगा नहीं कर सकता। Medicine's not going to heal you. दवाइयाँ भी चंगाई नहीं दे सकती। Your life will be shattered, confused and bewildered. आपका जीवन बिल्कुल विचलित हो जाएगा, बिखर जाएगा। So every time remember in your visual concept that the enemy is right
in front of you to take your peace. और इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि शैतान बिल्कुल आपके सामने खड़ा रहता है कि वो आपकी शांति को छीन ले। Day, morning, night, even when you are sleeping, this is enemy's tactics. दिन हो रात हो, यहाँ तक कि जब आप सो रहे हैं वहां भी शैतान आता है और आपकी शांति को छीन लेना चाहता है। ये उसका टैक्टिक्स है। I used to have a lot of stressful dream. Do you know? क्या आपको मालूम है, मैं रात को बहुत सारा तनाव से भरा हुआ ख्वाब देखता था। My days were beautiful. मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता था। But the moment I will go to sleep, that means I will get off guard. और जैसे ही मैं सोने जाता था, मैं ऑफ गार्ड माने मैं सुरक्षा का कवच से निकल जाता। And I will say, okay, let me sleep, and I don't have to be careful about anything. And that's where the enemy used to come in my dream and used to make my dream so stressful, so anxious, so fearful. And I would feel, when I get up from my sleep, I feel, wow, I'm so tired. I am so exhausted. I fought and I was fighting. It was all happening to me in my dream. और जब मैं सोने जाता, मैं सोचता अब तो मैं सोने जा रहा हूँ, और जब मैं सोता तो मेरी ख्वाब में तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता और मैं विचलित हो जाता। जब मैं नींद से उठता, मैं देखता कि मैं बिल्कुल तनाव से भरा हुआ हूँ। So the snake was coming to bite me to take peace while I was sleeping. और ये सांप आता और कहाँ आता? मेरे ख्वाब में आता, मुझे तनाव देने आता। I'm a man of God, I'm a pastor. मैं एक ईश्वर का दास हूँ, मैं एक पास्टर हूँ। What about you, my friends? आपके संग क्या होता है मेरे भाई बहन? You might say, oh, I don't have money, but money is not the factor. Peace is the factor. आप कह सकते हो मेरे पास पैसा नहीं, पैसा शांति नहीं लाता। शांति जो है वो कोई स्थिति के अधीन नहीं है। So people says, oh, I don't care for it. But my friend, this is like a treasure. Peace is like a treasure because peace is going to stabilize you. Peace is going to give you breakthroughs. Peace is going to give you, great results. शांति तुम्हें उन्नति देगा, शांति तुम्हें बढ़ोतरी देगा। जब तुम्हारे अंदर शांति होगा, तुम्हारा फल अच्छा आएगा। And that's the reason when the children goes to write their examination, what the teacher says, read children your questions and very peacefully start writing your answers. और एग्जामिनेशन हॉल में एक टीचर क्या कहता है, बच्चों बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ो और बहुत शांति से अपने सवालों का उत्तर तुम लिखो। And so when you are peaceful, you are still and you can write your answers, and then all your answers going to become good and your results will be great. और जब तुम शांति से अपने प्रश्नों का उत्तर लिखोगे, एग्जाम्स लिखोगे, तुम्हें सब आंसर्स याद आएगा और तुम्हारा एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा। When you have peace, when you are working, your work will be more beautiful. It will be more powerful. It will be more fruitful. और जब आप शांति से अपने काम को करते हैं, वो काम सामर्थ्यशाली होता है और उसका फल, उसका उत्तर बहुत अच्छा होता है। When even ladies, my sisters, when you cook at home, like when you are in a peaceful mind, you can not only cook, you will start singing. And some people have the habits of whistling, singing songs because you are joyful. Along with peace comes joy. और जब बहनें अपने घर में शांति से रहती है तो वो खाना बनाते बनाते क्या करती है, गुनगुनाने लगती है, या पुरुष अपना काम करते करते सीटी बजा के गाने लगता है। ये क्या है? उसके शांति का प्रतीक है कि उसके अंदर शांति उमड़ रहा है। It's very important. It's power. और शांति में पावर है, शांति में शक्ति है। And that's the reason not many of you have identified the fact that the enemy wants to take away your peace. और इसीलिए शैतान क्या करता है, तुम्हारी शांति को चुरा लेना चाहता है। So when the enemy would come to take away your peace, what do? जब शैतान तुम्हारी शांति को चुरा लेने आता, तुम क्या करोगे? You have to crush the head of the Satan. हमें शैतान under के your feet, and that's the power God has given us. हमें शैतान के सिर को अपने पाँव के नीचे कुचलना है और उस शांति को ले लेना है जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। So this is our action. The snake comes and we crush it under our feet. और यही हमारा प्रतिक्रिया है कि जब शैतान आएगा, अपने पाँव को उठाना और उसके सिर को कुचल देना So है। today I'm going to talk more on detail. You might think, how, Pastor, how do I do that? But all these things has to be done in the spiritual realm. And how do you do that today? I'm going to share from the Word of God. और ये आप कैसे करेंगे, इसे हम वचन के अधीन में आके समझेंगे। Luke chapter 10 verse 5 and 6. Let's read out.
लूका 10:5-6 जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। The kalyan is actually peace. That's not the right translation. English says peace. Let peace be in that house. और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि जिस घर में तुम जाओगे, जब तुम शांति घोषणा करोगे तो If there उस is घर में peace in that house, you will speak blessing, it will rest. And if the peace is not there, the blessing will come away. अगर किसी घर में शांति है तो जब हम वहाँ आशीष घोषणा करेंगे वो आशीष वहाँ ठहर जाएगा। लेकिन उस घर में अगर शांति नहीं है तो फिर जब हम आशीष घोषणा करेंगे वो आशीष हमारे पास लौट आएगा। Many people say, Pastor, pray for me. बहुत सारे लोग चर्च में कहते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें। I pray for them. On the spot, they may experience peace. They may experience breakthrough. But the moment they go back home, again, everything is gone away. और जब वो मुझसे कहते हैं पास्टर प्रार्थना कीजिए, मैं यहाँ पे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जैसे वो घर जाते हैं सब कुछ चला जाता है उनसे। Why? ऐसा क्यों होता Because there है? is no peace in the house. क्योंकि उनके घर में शांति नहीं है। Bible, just imagine, just get this very pictorially, try to take this into your life. Okay, the peace is a vessel. Okay, this is where the blessing should come. Peace is a vessel. And when you are actually pronouncing blessing, it should rest in peace. And if peace, the vessel is not there, you are prophesying, you are speaking life, it's not going to return over here. It's going to go away because there is no vessel for the blessing to go and rest. और अगर आप शांति घोषणा करेंगे लेकिन वहाँ पात्र ही नहीं है उस शांति को लेने के लिए, तो जब आप घोषणा करेंगे वो शांति कहाँ प्रवेश करेगा? वो तो वहाँ ठहर ही नहीं सकता। Are you getting, church, what I'm talking about? क्या आप समझ रहे चर्च मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? So how important is peace? Have you ever thought about it? क्या आपने कभी सोचा शांति आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? Okay, let's see what's the opposite of this peace. और ये शांति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? War. War. क्या है शांति का विपरीतार्थक शब्द? युद्ध. अशांति यानी कि युद्ध. It's war. और इसका विपरीतार्थक शब्द है अशांति अर्थात युद्ध। That means if there is no peace, there is fight. अगर शांति नहीं तो वहाँ लड़ाई है। You get my point? You want to fight every day? Do you like to fight every day? क्या आप रोज लड़ना पसंद करते हैं? With your wife, with your husband, with your sons, with your daughters, with your employee, with your neighbors. Do you like it, church? क्या आप रोज अपने घर में अपने एम्प्लॉय से अपने पड़ोसी से झगड़ा करना पसंद करते हैं? I don't want. मैं नहीं I चाहता don't want to हूँ। start my day by fighting with people. मैं लोगों से लड़कर अपने दिन को शुरू नहीं करना चाहता। But people are fighting in this world constantly from morning, night, afternoon. लेकिन लोग सुबह शाम रात लड़ते ही रहते एक दूसरे से। They're fighting in there with their wives and husbands and wives. They're fighting. There is no peace in the house. The children are scattered. Life is disoriented. The man goes to work and there he is fighting with his colleagues. और वो घर पे लड़ाई होता, स्त्री पुरुष आपस में लड़ते हैं, बच्चे तितर बितर जीवन जी रहे हैं, वो पुरुष बाहर जाता है काम करने, वहाँ वो झगड़ा करता है, तनाव में जीता है। Because this is a spirit, this is the ploy of the enemy. This is a very, very, very secret work of the darkness to take away the peace. He said, take the peace out from this man. That's it. और We win. शैतान का ये बिल्कुल योजना है, टैक्टिस है कि उसका काम ही है कि इस परिवार से शांति खींच लो। तो वो शांति खींचने के लिए वो नाना रकम के चीजों को खड़ा कर देता है कि वो परिवार लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है और शांति खुद ब खुद वहां से चला जाता If है। God is present in the place, there has to be peace. अगर ईश्वर वहां उपस्थित है तो उस घर में, उस परिवार में हमेशा शांति बरकरार रहेगा। If God is not present in that place, okay, my friends, get it very clear. There would be unrest, there will be confusion, there will be fights, there will be battles in that family, in that life. और जहाँ पे परमेश्वर नहीं रहेगा वो घर में युद्ध होगा, लड़ाई होगा, विभाजन होगा और नाना रकम के पाप वहाँ जन्म लेगा। I have seen families, they're very confused. मैंने बहुत सारे परिवारों को देखा, वो हमेशा विचलित, कंफ्यूज रहते हैं। You know, like, I don't know what to do. You know, they're confused. You tell them a simple thing. I don't know what to do. Oh, I don't know. I'm scattered. I'm fearful. I'm restless. I am confused. People keep on saying, I'm confused. Confused. Why?
आप उनसे पूछते रहे, वो कहेंगे मैं बिल्कुल विचलित हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा। हमेशा वो कंफ्यूजन में कार्य करते हैं, This is because there is no peace. क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं If there है। is confusion, it's from the devil. अगर वहाँ कंफ्यूजन है, विचलितता की आत्मा है, तो वो शैतान से आता है। Because God says, I have not come to give you confusion. I have not come to give you restlessness, but I have come to give you peace. 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 और परमेश्वर साफ कहता है, मैं तुम्हें विचलित आत्मा देने नहीं आया, मैं तुम्हें शांति का आत्मा देने आया हूँ। How many of you really panic? आप में से कितने जन हैं जो पैनिक करते हैं, अर्थात घबरा जाते, घबराहट से भर जाते Don't हैं। feel mad. You can raise your hand. आप- I told my issue, what I was going through. मैंने अपने बारे बताया, मैं किस चीज से गुजर रहा था। आप अपने बारे बताएं कि आप घबरा जाते, घबराहट से भर जाते हैं, Panic attacks. पैनिक हो जाते हैं, पैनिक अटैक जिसे कहा Please जाता lift है। your hand tonight. Today the Lord's going to deliver you. That's the reason the message has come. और आज परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, यही तो वो मैसेज है, तुम्हें छुटकारा I पाने have का। not come to give you lecture, but I have come with the word of God that you may get deliverance. मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे छुटकारे को लेकर आया हूँ। How many of you feel confused? आप में से कितने जन कंफ्यूज हो जाते, विचलित हो जाते, ये करूँ ना वो करूँ, ये करूँ या ना Yes, I करूँ। can see so many hands. How many of you feel so scattered? You don't ever feel, things are in place. You feel like everything is scattered. किसे लगता है कि हर चीज जैसे बिखरा हुआ है, अपनी जगह में नहीं, जैसे वो वहाँ होना चाहिए। एक बिखराव का एक एहसास होता है। This is the enemy's ploy. ये There's no है peace. शत्रु का टैक्टिस, उसकी चालाकियाँ तुम्हारे घर से शांति खींच लेने का। If you do not have peace in your life, अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, the devil has an open door for your life. तब शैतान के पास एक खुला द्वार है तुम्हारे जीवन में, जहाँ वो घुसकर हर चीज चुरा सकता है। Peace actually blocks the enemy to enter your life. और जब शांति तुम्हारे अंदर होता, वो द्वार बंद होता है और शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता कुछ भी चुराने के लिए। Peace is what blocks the enemy to enter your life. और शांति है वो द्वार को बंद कर देता है, चोरी के द्वार शांति से बंद हो जाता है। And if you do not have peace, अगर आपके अंदर शांति नहीं है, I'm talking about the peace that God is talking about. Jesus is talking about. He said, peace I give to you. I'm talking about the heavenly peace. मैं उस शांति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने किया कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। In that peace, like Bible says, be still and know that I'm God. और वचन साफ कहता है, स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। In that peace, you will be unshakable. You will be strong like a giant. You'll stand like a solid rock. और उस स्थिर में आप दृढ़ पाए, उस अशांति स्थिति में आप दृढ़ पाए जाएंगे, आप चट्टान की तरह स्थिर पाए जाएंगे अगर आपके अंदर शांति हो। The whole world will toss like a tossing, waves, but you would stand like a solid rock. और पूरी पृथ्वी में उथल पुथल होगा, लेकिन आप चट्टान के समान दृढ़ और मजबूत पाए जाएंगे। And the world will say, hey man, how are you so stable? Why are you not panicking? Why are you not afraid? Why are you not scared? Why are you not confused? Why aren't you anxious? और लोग आपसे पूछेंगे, अरे तुम डर क्यों नहीं रहे, तुम घबरा क्यों नहीं रहे, तुम्हारा प्रतिक्रिया इतना विपरीत क्यों है, तुम इतने स्थिर कैसे रह सकते हो जबकि हर चीज उथल फुथल हो रहा है। And he'll say like, I have the peace of God. और आप कहेंगे मेरे अंदर परमेश्वर की शांति है, Because peace gives confidence. क्योंकि पीस हमें आत्मिक बल देता है। Amen. आमीन। Peace gives us strength. शांति हमें शक्ति देता है। The other name of peace is called power. और दूसरा नाम शांति का है सामर्थ, बल। You need power? तुम्हें सामर्थ चाहिए, बल चाहिए। Unless you have peace, you will never be able to execute and function and operate under power. और जब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगा, तुम पावर में कभी काम नहीं A कर पाओगे। confused person cannot use their fullest authority. जो कंफ्यूज रहते हैं, विचलित रहते हैं, वो अपने अधिकार में कभी कार्य नहीं कर पाएंगे। Because this confusion will play in their mind and there will be double thoughts, okay? Two thoughts. This is right, this is wrong, this is good, this is bad. No, let me not do this. Okay, let me do that. So there's going to be a constant
double thoughts that's going to harass you. और अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, विचलित रहेंगे, तो आपका दिमाग दो भाग में होगा। कभी आपको लगेगा ये सही है, कभी आपको लगेगा ये सही है। अर्थात हमेशा आप विभाजित मानसिक दशा में कार्य करेंगे और कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अर्थात आप अपने पूरे अधिकार में कभी कार्य नहीं कर Do you पाएंगे। think God is like a tossing wave? क्या आपको लगता है परमेश्वर समुद्र के उस ढेव के समान है जो उठता है और गिरता Do है? you think God's yes today will become no tomorrow? क्या आपको लगता है जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आज हाँ कहा है, कल उसके लिए परमेश्वर कल ना कर देंगे? No, never. His ऐसा yes, yes, yes. His no is no. उसका चरित्र बिल्कुल दृढ़ है। जो उसका हाँ है वो हाँ है, और जो उसका ना है वो बिल्कुल ना है। And that's the reason the Bible says what's mentioned here would last and stand and would remain. Everything will pass away, but not the word of God. It stand firm in its place. और इसलिए कहता है पवित्र शास्त्र, एक एक वचन जो वहां लिखा है वो चट्टान के समान दृढ़ है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन एक वचन नहीं टलेगा जब तक कि वो पूरा नहीं होगा। If you don't have peace, one day you'll say yes, the other day you'll say no. अगर आपके अंदर शांति नहीं है, आप आज एक बात के लिए हाँ कहेंगे, कल उसी बात के लिए ना कहेंगे। If you do not have peace, you will get a wrong life partner. अगर आपके अंदर शांति नहीं, आपको गलत जीवन साथी मिलेगा। Oh, on the day of wedding, you were very happy because you felt this is the person that God has given you, and you're very, very comfortable. After some time, you kind of breaking your hand and say, "Oh, why did I get married to this person?" The next day, you are regretting. You are in? You are regretting. अच्छा, जब आप शांति से, आपके अंदर जब शांति नहीं, अर्थात आपने परमेश्वर से पूछा नहीं और शांति का आत्मा लिया नहीं, और अब तत्परता में विवाह कर लिए, शादी के दिन तो सब अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही दिन बीतेगा तब आप कहेंगे मैंने ये जीवन साथी क्यों चुना, यही मेरा जीवन साथी क्यों बना, और तब आप पछताएंगे कि इससे मैंने विवाह क्यों की। And that's the reason you will see many people doesn't stick on relationship. और इसलिए बहुत जन अपने विवाहित जीवन में स्थिर या दृढ़ या टिके हुए नहीं पाए जाते हैं। They keep on hopping, jumping, and kind of moving, running. और वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, विवाह जीवन की मर्यादा या मान को मानकर नहीं चलते हैं। Similarly, your job. उसी प्रकार से आपकी नौकरी, If you do not have peace, you would be jumping like a jack. अगर आपके अंदर शांति का आत्मा नहीं है तो आप एक नौकरी छोड़ेंगे, दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा पकड़ेंगे, तीसरा छोड़ेंगे, क्योंकि आप हर जगह जंपिंग जैक की तरह उछलते ही जाएंगे। You do not know what's from the Lord. क्योंकि आप जानते ही नहीं ईश्वर की ओर से है क्या। Because peace gives you confidence. क्योंकि शांति आपको आत्मा बल देता है। And if you don't have the confidence, your faith is also ineffective. It cannot operate. The authority cannot operate. Your faith cannot operate. The power cannot be executed. So ultimately, who you are a weak Christian. अगर आपके अंदर शांति नहीं, अर्थात आपके अंदर आत्मा बल भी नहीं रहेगा, अर्थात आपका विश्वास भी हिला हुआ है, और जब हिले हुए विश्वास से कोई भी कार्य करेंगे, वो कार्य कभी सार्थक या सफल नहीं हो सकता है। And that's the reason you see in the world there is so much of instability. इसलिए आप पृथ्वी में इतनी अनस्टेबिलिटी, इतना अस्थिरता आप देखेंगे। Do you know this? क्या आप People are जान- scared. Like when budgets will be coming up, people doesn't know what's going to come up now. जब बजट आता है लोग डरते कि अब क्या दाम बढ़ेगा, कैसे हम जिएंगे, इस पैसे में कैसे मैनेज करेंगे। You know what new policies is coming today? You know, there was a time the retirement benefit people, the retirement, the elder citizenship, they used to get a good amount of money, but all of a sudden the policy changed, and then the interest fell down, and now what happened? The elderly people are struggling. और जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स था, उसका एक पॉलिसी था, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज चेंज कर दिया है, तो जो आप रिटायर कर रहे हैं उनका बेनिफिट नहीं है, अर्थात वो विचलित है, परेशान है, वो कठिन जीवन जी रहे हैं। That means what? The whole world is unstable. इसलिए पूरा पृथ्वी एक अस्थिरता की जगह में है। If you try to put your hope on the things of the world, my friend, you are utterly getting into a wrong track, because you are putting your faith on the things of the world, which is unstable, and one day this will ditch you. और आप अगर अपना भरोसा संसार की चीजों पे लगाएंगे, व्यक्ति पे लगाएंगे, एक दिन धोखा खा जाएंगे, Because everything is unstable. क्योंकि हर चीज अस्थिर है, अस्थाई है। What is stable? तब स्थाई क्या है? God.
केवल परमेश्वर स्थिर और स्थायी है। What is stable? क्या है स्थायी? The word of God. परमेश्वर का वचन। This is what we need to stand with. This is where we need to get our confidence. This is what gives us peace. This is what gives us power. This is what gives us faith. And this what gives us hope, joy and everything. और ये वचन ही है जो हमें सामर्थ देता है, बल देता है, स्थिरता देता है, प्रतिज्ञा देता है, हमारे विश्वास को मजबूत और दृढ़ बनाता है। Don't ask for money, ask for peace. पैसा ना मांगे, शांति मांगे। That's very important. ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के The लिए। thieves also have money. All the चोर mafias के also. पास, चोर के पास, माफिया के पास भी बहुत पैसा है। So what's a big deal about money? तो पैसा पाना कौन सा बड़ा बात है? Everybody has money. सबके पास पैसा है। Without money, they cannot live in this world. बिना पैसा के संसार में जी ही नहीं पाएंगे। So money is not the problem. पैसा समस्या या प्रॉब्लम नहीं But है। very few people have peace. बहुत कम लोगों के पास शांति है। Very few people have peace. Not everybody have a peace. बहुत कम लोगों के पास शांति, सबके पास And शांति those नहीं है। people who have peace, they are successful. और जिसके पास शांति है वो सफल है। And I'm talking about the peace not of the world, the peace that comes from God, eternal peace. और वो मैं शांति के बारे बात कर रहा हूँ जो अनंत काल का शांति है, जो यहोवा परमेश्वर से आती है। 1 John chapter 5 and verse 19. पहला यूहन्ना 5:19 कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। That means who is controlling the world? कौन संसार को अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं? God. परमेश्वर सबको नियंत्रण में लिए हुए हैं, वश में लिए हुए हैं। Who is controlling the world? इस संसार को कौन वश में किया हुआ है? Yes. So when the world, when I'm talking about world is a system. ये वर्ल्ड एक सिस्टम है। Do you agree with me? It's a system. World is a system. If you say, oh, world, Prithvi, I don't know what is Prithvi. Prithvi goal hai. No. You're part of a system. World is a system. ये वर्ल्ड एक कार्य प्रणाली में चलता है, एक सिस्टम में चलता है। The world function in a system. ये वर्ल्ड एक सिस्टम में चलता है। And who controls the system? और ये सिस्टम को कौन Who कंट्रोल has the करता है? bottom of that system? और ये जो पूरा सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? And what he doesn't want? और क्या वो नहीं चाहता? The world may experience peace. वो नहीं चाहता कि संसार को शांति मिले। And that's the reason there's so much war. और इसलिए हर जगह युद्ध है। Every country there is a war. Maybe a war inside the country, that's called civil wars. The war within the territory or the region, communal war, that means among the community. There is a war outside the country, it's called international war. और अगर देखें तो युद्ध जो शहर के अंदर होता है उसे जिसे कम्युनिटी वॉर कहा जाता है, राइट्स कहा जाता है। जो हमारे देश के अंदर होता है उसे सिविल वॉर कहा जाता है। और अगर एक देश दूसरे देश से लड़े तो उसे अंतरराष्ट्रीय युद्ध कहा जाता है। Now people are talking about biological war. और अभी लोग जो है वो तो बायोलॉजिकल जीवाणु युद्ध करने जा रहे हैं। Oh my God, what's going on? तो ये क्या चल रहा है पूरी And not पृथ्वी only में? the civil war, communal war, or international war, or atomic war, but there's a war in the house, in the family. और ये युद्ध केवल देश में या शहर के अंदर या एक राष्ट्र के अंदर नहीं बल्कि अब घर के अंदर भी युद्ध पाया जा रहा है। Between relationships. रिश्तों के बीच में। And then if you narrow down, zero down, where do you land? Your personal life, there is a war in your life. और अगर हर चीज को छोड़ के एक जगह में आके हम रुके तो हम खुद को पाएंगे और हमारे जीवन में भी युद्ध है। Personally, if I ask you, where do you stand? You say, I am at a war. There's no peace in my life. Isn't it, church? अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ खड़े हैं, आप कहेंगे मेरे अंदर भी एक युद्ध है, मेरे अंदर शांति नहीं है। Why? क्यों? Because we are living in this world. As long as we will live in this world, this war will always be there. और जब तक इस संसार में हम जिएंगे ये युद्ध हमारे जीवन में चलता ही जाएगा। So what do? तो हम क्या करें? Crush the head of the serpent. Speak, church. What we have to do? हम क्या करेंगे चर्च जब हमारी शांति कोई चुराएगा तो? The God of peace will soon crush Satan under my feet. That's the stand.
और हमें यही स्टैंड लेना है कि परमेश्वर, शांति का परमेश्वर उस शैतान को हमारे पांव के नीचे कुचल देगा। Amen. This was all my introduction. I have not even come into the main message. ये मेरा इंट्रोडक्शन था, अभी तक तो मैं मैसेज में आया भी नहीं हूँ। But I'm going to teach you how you would crush the head of the devil. मैं अब आपको सिखाऊंगा आप शैतान के सिर को कैसे कुचलेंगे। Amen. John chapter 14 and 27. John 14 and 27. Is there that verse is there? I don't think, right? Okay, this is written over here. They have not done the multimedia. You can do this. It's a peace I leave with you, and my peace I give to you. Say that. यूहन्ना 14:27 कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। Okay, get it, church. Now God is saying, I have given you peace. Church say, God has given us this peace, even though there's so much of unrest. और ईश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें शांति दिया है, जबकि में चारों ओर इतना ज्यादा अस्थिरता है। So there is peace. Who has given this peace? Where can we get this peace? किसने हमें ये शांति दिया है? Yes. So peace comes from God because He is the Prince of Peace. और ये शांति परमेश्वर से आती है क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. So there is no Hallelujah. peace anywhere, only through Jesus Christ. In the और name ये- of Jesus, from our God in heaven. और ये शांति किसी और से नहीं आती, ये शांति केवल यहोवा परमेश्वर से आती है। Please get this. Oh, you might say, okay, if I have a bank loan, I'll get a peace. If I get a job, I'll get a peace. No, my friend, these are materialistic things, and never all these things can give you peace. और बैंक लोन या बैंक अकाउंट या नौकरी या बिजनेस, ये सब चीज आपको शांति नहीं दे सकता है। Peace comes from the Prince of Peace. शांति केवल शांति के राजकुमार से आती है। So it says, peace I leave with you. This was Jesus speaking to his disciple. और यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, And I give my peace to you. मैं अपनी शांति तुझे देता हूँ। Not as the world gives. ऐसा नहीं जैसे संसार देता है। Okay? So, इसलिए let not your heart be troubled, इसलिए तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, neither let it be afraid. ना वो डरे या घबराए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Where the devil wants to take the peace away from? और शैतान कहाँ से शांति चुरा लेना चाहता है? From our heart, हमारे दिल से, from our mind. हमारे मन से, From our heart. हमारे दिल से। Church, I want you to just do it symbolically. We need peace in our heart. अपने हाथ को उठा के सीने पे रख के हमें अपने दिल में शांति की जरूरत है। And we need peace in my mind. हमें हमारे मन में शांति की A जरूरत है। sound mind is a powerful mind. और साउंड माइंड अर्थात बिल्कुल स्थिर मन एक शक्तिशाली मन है। A peaceful heart is a joyful life. और एक शांति से भरा हुआ हृदय आनंद से भरा हुआ जीवन को जन्म Amen. देता है। आमेन। So this is हालेलुया। what the enemy wants to hijack from the world. और शत्रु क्या करता है? तुम्हारे जीवन से चीजों को चुरा लेना चाहता है। And that's the reason the people of this world want to replace it. और इसलिए ये संसार के लोग क्या करते हैं, वो क्योंकि वो शांति वो यहोवा से नहीं पाते, वो संसारिक चीजों से उन शांतियों को पाने की कोशिश करते And हैं। that's the reason they keep changing their jobs. इसलिए वो नौकरी पे नौकरी बदलते हैं, That's the reason they keep changing their cars. अपना गाड़ी पे गाड़ी बदलते हैं अपने आप को खुश रखने के Keep लिए, changing their clothes, watches, shoes, अपना जूता fashions. बदलते हैं, अपना ड्रेस बदलते हैं, अपना वॉच बदलते हैं। इन सब चीजों से वो क्या करते हैं? शांति को, खुशी को पाने की कोशिश करते And हैं। even sometimes people wants to, change their wives and husbands. और बहुत बार लोग अपना पत्नी भी बदलना चाहते हैं और अपने पति को भी बदल देना चाहते हैं। That's not the solution, church. लेकिन ये तो सलूशन नहीं है। That's चर्च। not the solution. ये सलूशन नहीं है चर्च। You are calling more problem. आप अपने पर ज्यादा समस्याओं को पुकार रहे हैं। The peace comes from the Prince of Peace. शांति केवल शांति के राजकुमार से ही आता है। And that's the reason you have to protect this peace into your heart, okay? And इसलिए- you have to protect this peace into your mind. Don't let it go away. आपको ये शांति को अपने मन में और अपनी आत्मा में, अपने दिल में बचा के रखना है। You have to keep this, secure it, very important, treasure it. आपको ये शांति को अपने अंदर सुरक्षित रखना है। It's very, very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। 90% of sicknesses
is the root cause of anxiety, of fear, of distress. What is hypertension? और 90% अगर हम रोग देखें तो वो कहाँ से जन्म लेता है? चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक। हाइपरटेंशन क्या है? It's an outcome of your stress. वो आपके तनाव से ही तो जन्म लिया है हाइपरटेंशन। What is high pressure? What is a cerebral attack? हाई ब्लड प्रेशर, सेरिब्रल अटैक माने ब्रेन स्ट्रोक। It's an outcome of your stress. ये सब आपके अंदर जो दबाव पैदा हो रहा है उसी से तो जन्म लेता Heart है। attack. You name it. The root is stress, anxiety, fear. और हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना, सब कहाँ से जन्म लेता है? चिंता, दबाव, मानसिक तनाव, इन सब चीजों से तो ये सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। So Satan is very crafty. He Sat- wants to take away peace at any cost from this world, from homes, lives, countries, nations, relationships, and from everywhere. और शैतान हर जगह से ये शांति चुरा लेना चाहता है, आपके जीवन से, परिवार से, देश से, राष्ट्र से, लोगों से, सबसे ये छीन लेना चाहता But है। how does the enemy enters in a Christian life? I want to share with you. एक मसीही जीवन में शत्रु शैतान कैसे प्रवेश करता Oh, you है? might say, I believe in Jesus. आप कहेंगे नहीं, मैं तो यीशु पे विश्वास Oh, I करता come हूँ, to church. मैं तो चर्च आता हूँ, But still, you don't have peace. लेकिन फिर भी आपके अंदर शांति नहीं है। Still, you're fighting with your wife. फिर भी आप अपने पत्नी से लड़ रहे हैं, You're fighting with your husband. आप अपने पति से लड़ रहे हैं, There is no peace in your house. आपके जीवन में शांति नहीं है, You're running like a madman, living jobs after jobs. और आप बिल्कुल एक पागल की तरह नौकरी पे नौकरी छोड़े यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, From this city to that city, from that city to that city. एक शहर से दूसरे शहर, एक नौकरी से दूसरे नौकरी, Because the enemy is actually after you. क्योंकि शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, Because the enemy has taken away your peace. क्योंकि शैतान ने तुम्हारी शांति को छीन रखा है, Your peace is under attack. तुम्हारी शांति आक्रमण के अधीन में है, And you don't know. आप नहीं जानते हो, And you're looking for a solution. और आप एक समाधान खोज रहे हो, But that solution is not going to help you because peace is not there. The main component is not there. No matter how lovely you prepare a food, but if the salt is not there, the food is useless. और आप जो भी समाधान खोज रहे वो शांति का समाधान नहीं है। आप जितना भी लजीज खाना बना ले, अगर उसमें आप नमक ना डालें तो वो लजीज खाना बेकार लगेगा। You'll throw that in the bin. I'm not going to have that. आप फेंक के उस खाने को फेंक देंगे, कहेंगे मैं ऐसा नहीं खाऊंगा। Are you with me, church? क्या आप समझ रहे चर्च? But how does the enemy enters? It's through an open door. और ये शत्रु कैसे प्रवेश करता? खुले द्वार के The द्वारा। first thing I want to write it down. If you have a note paper, write it down. How does the enemy enters? अगर आपके पास कागज और कलम है, लिख लीजिए शत्रु कैसे एंटर करता है। It's through your bloodline, वो तुम्हारे ब्लड लाइन से आता है, through your ancestral curses. तुम्हारे पूर्वजों के अभिशाप से आता If your है। father had hypertension, अगर तुम्हारे पिता का हाइपरटेंशन है, doctor will say genetically it will happen to you. और डॉक्टर कहेगा जेनेटिकली ये आपको भी हो जाएगा। Doctor said this is science, this is genes, this is genetic, this is DNA. डॉक्टर कहेगा जीन्स के द्वारा, आपके परिवार ब्लड लाइन के द्वारा, साइंस यही कहता है कि आपको भी होगा। If your mother has sugar, you will be most supposedly you will be having sugar. अगर आपके माँ का शुगर है तो डॉक्टर कहेंगे तुम्हारा भी शुगर हो सकता है, Because they will try to find out the history. वो आपके खून के इतिहास को लेने की कोशिश करेंगे। But to us, from the Bible, it says it's a curse of the ancestry. लेकिन हम बाइबल के द्वारा जानते हैं ये हमारे पूर्वजों का अभिशाप है, This is a curse of our ancestry. ये हमारे पूर्वजों का अभिशाप This is है। not genetic. This is not DNA. This is not, the lineage. This is not generational, but this is generational curse. और ये डीएनए या ये जनरेशन से, पूर्वजों से आने वाला क्या है? अभिशाप। Church, are you with me? चर्च क्या आप समझ रहे हैं? So the doorway of your ancestry. So what you need to do, you need to repent. I will share that. So first thing is like through the doorway of your ancestry. तो पहला वो द्वार जहां से शैतान चोरी करने आता वो है हमारा ब्लड लाइन। The second thing is called lack of sanctification. दूसरा है पवित्रता की कमी होना। 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 8. Is that there? Yeah. पहला थेसलोनियो 4
3 से 8 हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में जो हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। Okay, finish up. कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दबाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसे कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो तुझ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुझ जानता है, जो अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। My friend, if there is no element of sanctification, holiness in your life, that's an open door for the devil to come and take peace from your अगर life. तुम्हारे Simple. जीवन में पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, वो खुद में खुला द्वार है जहां से शैतान प्रवेश करेगा और तुम्हारे जीवन से शांति चुरा Bible says, लेगा। be holy as God is holy. और बाइबल साफ कहता है पवित्र रहो जैसा परमेश्वर पवित्र है। Without holiness, you cannot ever see God. और बिना पवित्रता का तुम कभी परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। And people say, oh, I come to church, I read the Bible, but I'm not holy. I live a worldly life. I live an open door. I do everything as the world does. No, my friend. आप ये कह सकते हैं मैं तो चर्च आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीता हूँ, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये नहीं चलेगा। द्वार खुला है। If this is not the standard for your life, you are in danger. अगर ये आपका जीवन जीने का स्टैंडर्ड पवित्र शास्त्र नहीं है तो आप खतरे में हैं। You might come from a culture. I'm not against culture, but culture is not standardized. आप कोई भी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर से आए, लेकिन उसका स्टैंडर्ड बिब्लिकल स्टैंडर्ड नहीं है। It differs. That means who knows whose standard is good? I don't know which culture is good. मुझे नहीं पता कौन सा सभ्यता, कौन सा संस्कृति सर्वोत्तम है, मैं नहीं I don't know. जानता। Bengali people say, oh, this is good culture. Punjabi says that's good culture. I don't know what's the right culture, man. पंजाबी कहते ये संस्कृति अच्छा है, बंगाली कहते ये सभ्यता अच्छा है, मैं नहीं जानता किसका कौन सा सभ्यता और संस्कृति अच्छा है। Oh, I'm confused. मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता किसके पीछे चलना है। But this is not confusion. लेकिन बाइबल कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं This is the करता। heavenly standard. ये है स्वर्गीय स्टैंडर्ड। If this is not the standard in your house, in your life, in your family, in your workplace, in the lives of your children, they are in danger. और अगर ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आप खतरे में हैं। You are in the red alert. और आप एक खतरे के जगह में हैं। You don't think, oh, I'll come to church and go back from the church. Nothing going to change. और आप बोलेंगे मैं तो चर्च जाता हूँ, चर्च से घर आता हूँ, कुछ नहीं कुछ बदलेगा। नहीं बदलेगा. Nothing going to change. कुछ भी नहीं बदलेगा। You will be the same as you are. आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं। This is going to change. पवित्र शास्त्र आपका जीवन बदल This is सकता है। standard. When you ये- take it, adopt it, that will teach you that God is holy and you have to live that holy life. और ये वो पवित्र स्टैंडर्ड है, जब आप इसे ग्रहण करेंगे, अपनाएंगे, तो आपके जीवन खुद ब खुद बदलने The लगेगा। third thing, the choices that you make in your life is a doorway for the enemy to take over. जो चुनाव आप अपने जीवन में करते हैं वो खुद में एक द्वार है जहां से शत्रु प्रवेश करता है और आपके जीवन के ऊपर अधिकार ले लेता When you है। get up in the morning, do you make choices in your life? जब आप सुबह उठते हैं, क्या आप चुनाव करते हैं? Yes or no? हाँ या ना? अरे church, are you with me? Can you समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सुबह जब उठते हैं आप चुनाव करते हैं उस दिन के लिए कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। खाना क्या बनेगा? That's your choice. बाजार से क्या सब्जी लाएंगे? That's your choice. White jacket पहनेंगे ना black jacket पहनेंगे? This is your choice. White socks or black socks? That's your choice. What shoe you going to wear? You going to wear your kittos or you going to wear your formals or you going to wear your casual? That's your choice. अर्थात सुबह उठ के हम सब चुनाव करते हैं, हम क्या पहनेंगे, क्या बनाएंगे खाना में, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या पहनावा में पहनेंगे, ये सब चीज हम हर सुबह अपने लिए चुनते हैं। Life is full of choices. जीवन चुनाव से भरा हुआ है। And if you make the wrong choice, अगर आप गलत चुनाव करेंगे, boom, the enemy gets in. शैतान आएगा और प्रवेश कर Don't जाएगा। say this is my life and I can do anything.
ये ना कहिए मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूं। You are not the owner of your life. God is the one who has आप created अपने you. जीवन के मालिक नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन का मालिक So है। the choices of your life is like the friends that you associate with. It's very important. और चुनाव में कुछ बातें आती है, जैसे कि किस मित्र से आप मिलते हैं, कौन है आपके मित्र, Who's your friend? कौन है आपके दोस्त। Your friend can be possessed by the power of a Leviathan. Do you know? आपके मित्र लेवाइथन की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। You're seeing the friend, but the spirit that has taken over this person is a Leviathan. आप भले उसे दोस्त कह रहे, लेकिन उस दोस्त के अंदर लेवाइथन घुस के बैठा हुआ है। And the Leviathan is actually targeting you in form of your friend. और वो जो लेवाइथन है वो अपने आपके दोस्त के द्वारा आपको घात कर रहा है। Judas, simple person. Just take the example of Judas, you know. But the spirit of greed that was living with Judas. और जूडस को देखिए, वो तो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर लालच का आत्मा था। And what happened? Judas did a massacre. और जूडस ने इतनी बड़ी गलती कर बैठी, And even he messed his own life. और उसने अपना जीवन भी बर्बाद कर लिया। Because why? क्यों? Because of his choice. अपने चुनाव के कारण। Your choice is a very important, church. आपका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है And चर्च। especially with the friends that you associate. जिन लोगों से, जिन मित्रों से आप मिलते हैं, It's very important. बहुत महत्वपूर्ण है। You must understand who's your friend and who's not your friend. Come again? Who's your friend and who's not your friend. आपको चुनाव करना है कि कौन आपके मित्र रहेंगे और कौन आपके मित्र नहीं Don't try रहेंगे। to be friend to everybody. I have a lot of reservation, by the way. सबको दोस्त ना बनाए। मैं इस जगह में बहुत सतर्क रहता हूँ। I don't call everybody, like, I don't want to be friends to everybody. No, I don't want. मैं सबसे मित्रता नहीं करता। You have to be careful. आपको सावधान होना I है। can meet, I can minister, I can pray, but I will not become friend. मैं लोगों से मिल सकता हूँ, उन्हें मिनिस्टर कर सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता can हूँ, pray for them. लेकिन उनके लिए मैं प्रार्थना कर सकता, लेकिन वो मेरे मित्र नहीं बनेंगे। Because friends is association. क्योंकि दोस्ताना में या दोस्ती में हम एक दूसरे के संग सहभागिता करते Now see हैं। what happens. When we are friends, we are rubbing. जब हम मित्र, हम एक दूसरे से रोज उठते बैठते हैं, अर्थात उनका संग हमारा मेल मिलाप होता ही चला जाता है। So when you are rubbing, what happens? जब एक दूसरे से आप रोज मिल रहे हैं, क्या होता है? My some part will go there and that her some part will come to me. There will be a mixture. मेरा कुछ हिस्सा उसमें जाएगा, उनका हिस्सा कुछ मुझ में आएगा और दोनों मिक्स हो जाएगा। And that's people doesn't understand that. और ये लोग नहीं समझते। When you rub, the evil will come, jump over you, boom. और जब एक दूसरे से आप मेल मिलाप बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, वहां का दुष्ट आत्मा आप पे जम कर जाएगा, आप पे अधिकार ले लेगा। Why? Because you have considered that person to be your friend. You are giving a legal access. क्योंकि आपने लीगल द्वार खोला है, आपने उसे मित्र पुकारा है, आपने द्वार खोल दिया शत्रु के लिए। And the devil comes so happy. I won that. I won that. I won और that. शत्रु बहुत खुश हो जाता है, अरे मैं जीत गया, मैंने वहां स्थान पकड़ लिया। The second thing, second choice is called the places that you go for pleasure. और दूसरा चुनाव उन स्थान में जहां आप जाते हैं आनंद के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। Places where do you go for pleasure? Please answer me, church. चर्च बताए आप कहाँ जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए, आनंद के लिए, प्लेजर के लिए? Speak up. Huh? For pleasure you go to market. কোথায় যান? আত্মীয়র বাড়ি। আত্মীয়র বাড়ি। শাদি, বিয়া, marriage, social function. Because marriage is a fun. It's a joy. Everybody going to come together. और विवाह आनंद है क्योंकि सब वहाँ आएंगे, मेल मिलाप होगा। Come to your relative's house. अपने रिश्तेदारों के घर को आओ। You go to your relative's house. आप अपने रिश्तेदारों के घर को जाएंगे। You are filled with peace of God. आप परमेश्वर के शांति से भर जाएंगे। And they don't have peace. They have confusion. और वहां पे जाके देखेंगे कि आपके रिश्तेदारों में शांति नहीं, बल्कि वो परेशान, विचलित, बिखरे हुए लोग हैं। Then you go to their house and they eat together. You move out together. After 2 days, you will feel also restless. और 2 दिन जब वहाँ खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, उनके अंदर जो बेचैनी था वो आपके अंदर घुस जाएगा और आप भी अपने अंदर बेचैन महसूस करने लगेंगे। Have you ever felt it? कभी ये हुआ है? Everybody is saying yes.
But see how the enemy is crafty. और देखिए कि शैतान कितना चतुर है. So what happens when you want to maintain this peace? Your life actually become very restricted. और जब आप इस शांति को बरकरार रखना चाहते, आपका जीवन बहुत सकरा हो जाता है. And the whole world will say, "Hey, क्या बात है? तुम शादी में नहीं आया? अरे क्या बात है? तुम पार्टी में नहीं आया? ओ क्या बात है? बर्थडे में नहीं आया?" और आप नहीं जा रहे. क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे आप? क्योंकि आपके पीस को आपको बचा के रखना है, क्योंकि ये पैसा से भी मूल्यवान है. Your money, you lose it, nothing loses. You lose your money, you'll get back again sometime. Say that. आप पैसा खो देंगे, कुछ नहीं खोएंगे. आज पैसा जाएगा, कल फिर आ जाएगा. But if you leave your peace, boom, the enemy take over. और जैसे आप अपनी शांति खोएंगे, शैतान तुरंत चलाएगा. So you have to be careful. You might don't say, "Oh, that's my friend, that's my brother, that's my sister, that's my cousin." Okay, fine. The problem is in the bloodline. आप कह सकते हैं ये मेरा कजिन है, ये मेरा भाई है, चाचा है, मामा है, लेकिन प्रॉब्लम तो ब्लड लाइन में ही है. कहाँ पर प्रॉब्लम है? ब्लड लाइन में. और अगर बच्चों को बहुत मार पीट के बड़ा किया गया हो, डांट डपट कर और खूब भाषा इस्तेमाल करके, तो बच्चा में शांति नहीं पाया जाएगा. डर और भय ही पाया जाएगा. If there is an emotional abuse, अगर इमोशनल माने जज्बातिक तरीके से उसे अब्यूज करके बड़ा किया गया है, you know, no physical beating or something like that, but there was a emotional abuse. The child was saying, the parents are fighting, the father is beating, the mother is beating, the house is in a chaos. The child is like an emotional abuse. और माता पिता आपस में लड़ रहे, गाली गलौज हो रहा, मारपीट हो रहा, और बच्चा उसे देख रहा है, तो इमोशनली अब्यूज हो रहा है. Or maybe the teacher has misbehaved with the child. या एक टीचर ने छोटे बच्चों के संग मिसबिहेव किया है, तो बच्चा का मानसिक संतुलन हिला हुआ ही रहेगा. Or the elders of the family has misbehaved and abused the child. या घर के किसी सदस्य ने उस बच्चे को अब्यूज किया है और उसके संग दुर्व्यवहार किया है. Fear, confusion, unrestless, all these things will be part of this child. और ये जो डर है, जो भय है, और ये सारा जो कंफ्यूजन है, वो सब उसके पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाएगा. They will never be able to enter the rest and peace of God, and they will never be successful in their life. अब वो लोग कभी परमेश्वर के शांति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वो कभी सफल भी नहीं बन पाएंगे. There will be always confusion ruling their lives. उनके जीवन में हमेशा कंफ्यूजन राज्य करेगा. And the third abuse is called sexual abuse. और आखिरी जो अब्यूज है वो है शोषण करना, बच्चों का शोषण A होना. lot of children were sexually abused as a child. बहुत सारे छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया गया जब वो छोटे बच्चे ही थे. These stories doesn't come out, और ये कहानियां बाहर उठ के आती नहीं है, but there is story. लेकिन उनके अंदर ये कहानी दबा हुआ ही There are रहता many है. stories that are sitting over here, I can tell you, और यहाँ बहुत सारी कहानियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, but nobody knows that. लेकिन कोई नहीं जानता उन कहानियों को. And you have actually hidden it in your life, और somewhere आपने at the उन्हें- corner of your life. और उन सब बचपन की घटनाओं को आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं दबा कर रख कर छोड़ दिया But है, the story is still there. लेकिन वो है दबा हुआ कहानी आपके अंदर छुपा हुआ And है. that is the reason your life is so strugglesome. और इसीलिए आपका जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ जीवन है. That is the reason there is confusion, there is fear, there is always restlessness, wrong decisions, and there is no peace. इसलिए डर, भय, गलत डिसीजन लेना, पीस नहीं होना, कंफ्यूजन में ऑपरेट करना, ये सब चीज आपको पर्सनालिटी में उथल फुथल करता रहता है. The next point is called the doorway for the enemy to take away peace is called traumatic incidents. और छठवा है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, यानी ट्रॉमा देने वाला कोई हादसा. Many traumatic experience. Maybe a child has lost the father or a mother in a very young age. शायद बचपन में ही उसने माता या पिता को खो दिया, वो ट्रॉमा उसके माइंड में घुस गया. Maybe a child has seen a divorce in the family. शायद उस बच्चे ने अपने परिवार में डिवोर्स को देखा है. Or maybe a criminal activity that has taken over. या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी घर में बीता हो. Or there can be some perverted observation, bad या कुछ things. खराब चीजों को बच्चों ने अब छोटे उम्र में ही देख लिया हो. Many men, they have relationship with the maid in the house. बहुत सारे पुरुष हैं जो अपने नौकर चाकर से गलत संबंध रखते हैं. Maybe a small child has seen the father doing a wrong act. और शायद उस बच्चे ने अपने पिता को गलत काम करते देख लिया हो. Gone.
वो उसके माइंड में एक आत्मिक दबाव डालेगा। Satan is very cunning. शैतान बहुत धूर्त है। When he is attacking the world peace, don't think that he is a small little bacha, okay? He is working every minute detail to take away this peace. और शैतान किसी को नहीं छोड़ता, एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ता। The other point is this: any sinful acts or habits, particularly fornication, और कोई भी पापी स्वभाव या हरकत जो खासकर परमेश्वर को उसकी शुद्धता को या उसका ईश्वर होने को चुनौती देता हो, it's like sexual sin. जैसे कि सेक्सुअल पाप करना, It's like pornography. जैसे पोर्नोग्राफी, It can be lesbianism, it can be homosexuality, it can also be, like sexual acts. कोई भी प्रकार की सेक्सुअल पाप को करना, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन होना, गे होना, पोर्नोग्राफी करना, ब्लू मूवी देखना, इस प्रकार के कोई भी गलत शारीरिक या मानसिक पापों को करना। That's a doorway for the enemy to take away peace from your life. और वो बहुत खुला द्वार है शैतान के लिए आकर आपके जीवन से शांति को ले लेने का। The next is called the laying of hands. और आखिरी है हाथ रखना। Laying of hands. हाथ रखना। Oh Baba ji, मेरे बच्चा को आप थोड़ा हाथ लगा दीजिए. That time you were not Christian. By the time you become a Christian after 10 years, but before that Baba ji already have laid a hand on you. और आपने हाथ रखवाया अपने ऊपर किसी के द्वारा से, बाबा जी हो, पीर बाबा हो या जो भी बाबा हो, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए, अभी आप मसीह बन गए हैं, लेकिन तभी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर रिलीज कर दिया Because already you have dedicated the child. आपने ऑलरेडी उन बच्चों को उन सारे अंधकार के शक्तियों के सामने समर्पित कर दिया। Maybe you were pregnant and somebody came and put your hand. By then you were not Christians and kept your hand on your stomach and it's gone. और शायद आप उस समय विश्वास में नहीं थे और कोई भी आकर आपके पेट में हाथ रखा और उसके बाद समय चला गया। The child becomes big. वो बच्चा बड़ा हो गया। And the child doesn't know what is going on in his life. और वो बच्चा जानता ही नहीं उसके जीवन में क्या बीत रहा है। He says everything is fine, but one day that the child was dedicated, and that's the way through which the enemy took over, right from the child. So be careful who lays your hand upon you. और इस बात को ध्यान रखें कि कौन आपके ऊपर हाथ रखता है। I don't let anybody touch my head, okay? मैं किसी को अपने सिर पे हाथ रखने नहीं देता हूँ, Unless I know about that person. जब तक कि मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं। Or somebody who has a higher mantle than me, higher mantle of anointing than me, then I will go for prayer. That person can lay hand on my head. और जब तक कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता कि उसका अभिषेक मुझसे बड़ा है, मैं कभी उसे अपने ऊपर हाथ रखने नहीं देता। Many people push their hand. I say no, sorry. बहुत जन मेरे ऊपर हाथ रखते हैं, मैं कहता नहीं, हाथ हटाओ, Be careful. सावधान रहे। Oh, even in the church or somewhere, कोई pastor आया, चला गया, pastor जी मेरे लिए prayer कर दो, prayer कर दो, prayer कर दो. Be careful. That pastor is the real pastor or a false pastor. और बहुत सारे लोग पास्टर्स के पीछे दौड़ जाते, जानने की कोशिश करें वो अभिषेक दास है भी या अभिषेक दास वो नहीं है। In my 20 years I'm pastoring, okay, I have seen a lot of fake and false pastors. Evil spirit possessed pastors. People say they are pastors, but they are not pastors, and they were caught. False pastors. So be careful. Don't let anybody lay hand on you unless you have a conviction in your spirit. और जब तक कि आपके आत्मा में कन्विक्शन ना हो, जब तक कि आप उसके अभिषेक को ना पहचानते हो, किसी को अपने ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ना करने दें। Okay? Are you with me? क्या आप समझ रहे हैं चर्च? I'm teaching you. This is teaching to prepare you. मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। And the other one is called any idle words. कोई भी मूर्तियों का आइडल वर्ड्स, कोई भी बेकार शब्दों का इस्तेमाल करना। Through your idle words, the enemy can take over you. आप जब बेकार की बातों को कहते हैं, नकारात्मक बातों को कहते हैं, शत्रु आपके ऊपर अधिकार ले लेता Through है। your idle word, there can be curse, invoking. और आपके नकारात्मक शब्दों के द्वारा आपके ऊपर अभिशाप जन्म ले सकता Through है। your indisciplined speaking. आपके इनडिसिप्लिन माने बिना अंकुश के शब्दों को इस्तेमाल करने से शैतान आपके ऊपर अधिकार ले सकता है। When you talk about sex, lie, fights, horror, the enemy will enter in that place.
अगर आप झगड़ा करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, बिना अंकुश के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, शत्रु आपके शब्दों से ही प्रवेश कर On जाएगा। 25th December in Ukhla, the youth had presented a powerful skit. And in that skit, they acted Satan so well, we literally felt the devil came in that house. In that place. उखड़ा में यूथ ने एक स्किट को किया था और उन्होंने उस एक्टिंग को इतना ज़्यादा रियल कर दिया कि एक्चुअली वहाँ पे शैतान आ चुका। And then at the end, I had to pray for these people and to break every curses and cleanse them out. और फिर क्या हुआ कि अंत में मुझे बच्चों को बुलाकर प्रार्थना करना पड़ा, वो सारे अंधकार को बांधना पड़ा, उन्हें रिलीज कराना पड़ा। So you have to be careful with the word of your mouth. आपको आपके मुंह के शब्दों से साफ रीति से उच्चारण करना है। Church, then how do we live in peace? हम शांति में कैसे जिए? What I taught you, how the enemy enters to take the peace, now I'm teaching you how to live in the peace. अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शांति में कैसे जीना है। Proverbs 16:7 says, live to please God, that will give you peace. और वचन साफ कहता है कि तुम शांति में रहो तो परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। Be in peace with God. तुम परमेश्वर के संग शांति में रहो। How can you be in peace with God? आप शांति में कैसे रहेंगे? By being obedient to God. परमेश्वर के संग आज्ञाकारिता में, By doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हुए। Amen. So be in peace with God. परमेश्वर के संग शांति में रहो। Even your enemy will be in peace with you. यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे संग शांति में रहेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। If you are in peace with God, your enemy will also be in peace with you. और अगर तुम अपने शत्रु के संग शांति में रहोगे तो वो भी तुम्हारे संग शांति में आ जाएंगे। Philippians chapter 4 verse 6 and 7. How can we be in peace with God? It says by thanking God. और वचन साफ कहता है फिलिपियर 4:6-7 कि तुम कैसे शांति में रहोगे, उसे हर विषय में धन्यवाद देते हुए। Pastor Sarita gave a powerful message on all three places, and there was thankfulness. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. You don't understand what's going on. Say, thank you, God. Well, in advance, you say, thank you, God. Things are not going good in your life. Say, thank you, God. And when you keep thanking God, you are actually welcoming the peace of God to take over you. और जब तुम दिन भर धन्यवाद देते रहोगे तब तुम परमेश्वर की शांति में खुद ब खुद प्रवेश कर John जाओगे। 16 and verse 33 says, and Isaiah 26 and 3 says, you can go home and read it out. It says, you can live in peace in God when you keep trusting God and His Word. Say, Which one? keep trusting God and His Word. परमेश्वर और उसके वचन पे तुम निरंतर भरोसा करो तो उसकी शांति तुम्हारी रक्षा करेगा। So thank God, there will be peace. Be जब- pleased with God, there will be peace. Trust God and the Scripture, there will be peace. ईश्वर को धन्यवाद दो तो शांति मिलेगा, ईश्वर पे भरोसा करो तो शांति मिलेगा, ईश्वर के संग तुम रहोगे तो तुम्हें शांति मिलेगा। Romans 8 and verse 6 says, set your mind on the Spirit, not on the flesh. और अपने शरीर पर मन ना लगाओ, तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाओ, जीवन और शांति तुम्हें That means मिलेगा। what? Listen to the Spirit of God in you. और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसकी बातों को सुनो। Not what the flesh says. उस शरीर की आवाज को मत सुनो। Not what your mind says. तुम्हारा मन जो कहता है उसे मत सुनो। But what the Spirit says. God, I listen to the Spirit of God. And और- God, there will be peace. और तुम कहो कि मैं ईश्वर तेरी आत्मा को सुनता हूँ और तुम्हारे अंदर शांति पाया When there जाएगा। is peace, there is longevity. और जब तुम्हारे अंदर शांति आएगा तुम्हारा आयु बढ़ जाएगा। Amen. Do you know this? When you have peace, there will be longevity. जब There will be तुम्हारे more अंदर life. शांति आएगा तुम्हारा आयु बढ़ जाएगा Your life would become beautiful. और तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा। Every day you would be singing song and praises and thanking Him. Say, thank you, Lord. You know, there will be thanksgiving, there will be praises, there will be honors, my friend. So peace, peace, peace is very, very important. So submit to the Spirit हर of God. स्थिति में परमेश्वर का शांति होना जरूरी है। Romans 16:20 says, रोमियो 16:20 कहता है, crushing the head of the serpent is a spiritual warfare. We as Christians, we have to diligently start doing spiritual warfare.
और मसीह होने के नाते हमें आत्मिक युद्ध लड़ना है और सांप के सिर को कुचलना है। Every day say, I revert the order of the enemy. All the fear, all anxiety, all confusions, leave and go to hell. I call for peace. The devil, you have lost your battle. You know, this is called spiritual warfare. और जब शैतान आक्रमण करने आता है उसे भगाना है और शांति को अपने जीवन में मांगना है। Matthew 7:77 says, prophesy, declare and announce peace over your territory, over your land, over your life, over your family, upon your children, upon your nation. और अपने घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार, राष्ट्र के ऊपर ईश्वर की शांति की घोषणा God, I करें। call for peace upon my house. I call for peace upon my family. I call for peace upon my children. I call for peace upon the ministry. I call for peace upon my country. I call for peace for Jerusalem. Bible says, keep praying for the peace of Jerusalem. अब बाइबल कहता है कि जेरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। So when you prophesy, proclaim, announces, you have to do it every day. और जब आप घोषणा करते, प्रोफेसाई करते, आपको निरंतर शांति की घोषणा करना है। Hebrew 12:14 says, seek peace, look for peace, ask for peace. Say, God, I want peace. God, is it from you? God, let me know. I am always looking for peace. और हिब्रू का वचन कहता है कि शांति की खोज करो। Psalm 34:14 says, turn from evil and do good and there will be peace. बुराई से मुंह मोड़ो और भलाई करो तो तुम्हें शांति मिलेगा। Psalm 119 and verse 165 says, love the Lord and there will be peace. और भजन संहिता 1:19 कहता है परमेश्वर से प्रीति रखो तो तुम्हें शांति मिलेगा। And I could go on long, but time is short. Say that. और मैं और भी ज्यादा बता सकता हूँ लेकिन समय कम है। But my friends, today is a day of deliverance that you may have peace. और आज छुटकारे का दिन है ताकि आपको शांति मिले। Amen. Are you ready to get this peace back? क्या आप तैयार हैं शांति को पाने के लिए? Do you want it? Is important in your life? क्या आप जानते हैं ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण Do you है? believe you need this peace? क्या आपको मालूम है आपको ये शांति चाहिए? How many of you say, I need this peace? आप में से कितने जन Oh, I कहेंगे need मुझे peace. शांति चाहिए? I need peace. मुझे भी शांति चाहिए। Okay. So what we will do, I will take you through a prayer of repentance. मैं आपको अनुताप की प्रार्थना में लेकर जाऊंगा। Because we don't know, maybe there was sexual abuse, they were like prenatal abuse, they were like ancestral curses. I don't know what kind of package and the open door still is open in your life. और आपके जीवन में क्या बीता है हमें नहीं मालूम। क्या बचपन में आपका शोषण किया गया? क्या आप अत्याचार देखे हैं? पारिवारिक लड़ाई झगड़ा को देखा है? आपके अंदर कौन सा चीज़ छुपा हुआ है जो आपको एक तनाव में, एक कंफ्यूज पर्सनालिटी में लेकर जा रहा है? हम आपके लिए प्रार्थना करें। Let's pray with me. Okay. So मेरे संग ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह, আমি ক্ষমা চাইছি प्रभु, আমি পশ্চাতাপ করছি प्रभु, मैंने गलती किया, मगर आज मैं आया हूं आपकी उपस्थिति में और मैं अपने खुद के पूर्वजों के पाप और मेरे ब्लड लाइन के लिए मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगिए। आपका ब्लड लाइन, देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर ब्लड लाइन। से गॉड, आई एम सीकिंग फॉरगिवनेस, मुझे माफ कीजिए। लीड सरिता, लीड दिस प्रेयर, द ब्लड लाइन प्रेयर। ओ रबा शिखा तका शिखा तरा लबा, बोलिए खुदा से, बोलिए प्रभु मेरी पूर्वजों के पापों से मुझे आजाद कर दे, मेरी घराना के पापों से मुझे आजाद कर दे। ब्रेक एवरी कर्स ऑफ योर फोरफादर्स। और कहिए कि मैं आजाद हूं, मेरी घराना आजाद है, मेरी खून को परमेश्वर ने साफ कर दिया है। ओ प्रभु यीशु मसीह, पूर्वजों के पाप की अभिशाप में मैं नहीं रहूंगा, मैं उसे तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी ऊपर आजादी की घोषणा करता हूं। उनके पाप, उनकी अभिशाप हमें छोड़ दे। और मैं कहता हूं कि शैतान के लिए उस द्वार को मैं बंद कर देता हूं यीशु नाम से। और परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके संग जोड़ता हूं और आपके संग रहता हूं और आपके लहू से अपने आप को धोता हूं और आपकी वचनों से अपने आप को मैं प्रस्तुत करता हूं, शुद्ध करता हूं प्रभु जी। द सेकंड रिपेंटेंस जिसको आपको करना है, इसको लैक ऑफ सैंक्टिफिकेशन, यानी कि अनहोलीनेस। अगर कहीं पर आपका जीवन में अनहोलीनेस है, अपवित्रता है, गलती है दोस्तों, आज उसे सुधारिए, उस द्वार को बंद कीजिए।
कहिए कि परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु जी सारी अशुद्धता की आत्मा को मैं उखाड़ता हूँ और उसके पहले क्षमा मांगता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे 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 गलती हुआ, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। लॉर्ड फॉरगिव मी। मैंने पाप किया, अगर आंखों के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा, कोई चीजों के द्वारा, से लॉर्ड फॉरगिव मी। गॉड आई सीक फॉरगिवनेस फॉर ऑल माय अनहोली एक्ट्स। सारे अपवित्र कार्य के लिए मैं तुझे क्षमा मांगता हूँ तुझसे प्रभु जी, और उस द्वार को बंद करता हूँ। मैं रिपेंट करता हूँ प्रभु जी, और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं पवित्र बनूं क्योंकि आप पवित्र हैं। परमेश्वर मुझे बदल दीजिए, मेरे मन को नया कीजिए। सारी अशुद्धता की द्वार को मैं यीशु के नाम से बंद करता हूँ और मैं रिपेंट करता हूँ यीशु नाम से। अब थर्ड रिपेंटेंस की बात है, चॉइसेस। अगर कोई गलत दोस्त के संग अपने इंटीमेट हो चुका, अगर कोई गलत जगह में आप पहुंच गए फॉर योर प्लेजर, कोई गलत व्यक्ति के संग आपका दोस्ती बढ़ गया और किसी के संग आप बहुत गहरा चला गया, क्षमा मांगिए। कहिए कि प्रभु जी इन सारी द्वार को मैं बंद करता हूँ और यहाँ से मुझे लौटना है प्रभु, यहाँ से मुझे बाहर होना है प्रभु जी। लॉर्ड मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी, आई हैव बीन इंटीमेट विद सम पीपल जो कि आपकी इच्छा में नहीं था। अगर किसी को मैंने अपना दोस्त बनाया जो कि आपके ओर से नहीं था, अगर कोई जगह में मैंने किया जो कि आपकी इच्छा में नहीं था, अगर कोई ऐसे कामों को मैंने किया जो कि प्रभु आपकी इच्छा में नहीं था, प्रभु जी मैं आज तुझसे क्षमा मांगता हूँ और कहता हूँ कि मुझे माफ कर दे प्रभु, हमें माफ कर दे प्रभु जी। हम लोग गलती कर बैठते प्रभु जी, हम लोग सोचते कि ये अच्छा है वो अच्छा है, मगर प्रभु बहुत सारे समय में सुनते भी नहीं आपसे कि प्रभु ये तेरी ओर से कभी था ही नहीं परमेश्वर, ये शैतान की ओर से था, ये शैतान भेजा था प्रभु जी। मैं भ्रमित नहीं होना चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लोग आजाद हो जाए प्रभु, उन सारे अनहोली बॉन्डिंग से वो अलग हो जाए यीशु नाम से प्रभु जी। ये लोग आजाद हो जाए प्रभु जी, रॉन्ग एंगेजमेंट से भी ये बाहर आ जाए प्रभु जी। सारे रॉन्ग एंगेजमेंट को तोड़ दीजिए, क्षमा मांग के तोड़ दीजिए। से गॉड आई प्रे एवरी रॉन्ग एंगेजमेंट फ्रॉम माय लाइफ फादर गॉड, आई स्पीक दैट लॉर्ड आई बी फ्री फादर गॉड। अगर किसी को आप दोस्त बना है मगर आप जानते वो सही नहीं है, वहां से आप बाहर नहीं आ पा रहे, कहिए कि यीशु नाम से प्रभु हमें आजाद कर दीजिए प्रभु, हमें आजाद कर दीजिए फादर। टच मी, चेंज मी, सेट मी फ्री, हील मी गॉड, आई नीड यू फादर। धन्यवाद हो प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। करला बरालाबा। अभी क्षमा मांगिया जब आपको शायद मालूम ही नहीं था, जब आप आपके माँ के पेट में थे, आपके माँ क्या तनाव से गुजरा था आपको मालूम नहीं था दोस्त। आज क्षमा मांगिए, कहिए कि प्रभु जी मुझे पता नहीं है, जब मैं अपना माँ के पेट में था परमेश्वर मेरे माँ क्या चीज़ों से गुजरा, क्या तनाव से गुजरा प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उस तनाव को मेरे ऊपर से तोड़ दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपने ऊपर आज शादी की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। सारे फियर, सारी एंजाइटी, सारे डिस्करेजमेंट, सारे सैडनेस, सारे कंफ्यूजन, सारे बिटरनेस से मुझे आजाद कर दे प्रभु यीशु। सारे कर्ज को तोड़ दीजिए प्रभु जी मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे घराना के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर से प्रभु जी मुझे आजाद कर दीजिए। आप मुझे मेरे माँ के पेट से आजाद कर दीजिए प्रभु जी। मेरी माँ के पेट में बहुत सारे समय में कर्ज, बहुत सारे सिस्टर के अंदर कर्ज है, शायद वो अपना जिंदगी में तनाव से गुजरते हैं और वो कहते हैं कि सुइसाइड कर ले। सारे सुइसाइडल अटैक्स, सारे सुइसाइडल अटैक्स आपको छोड़ दे यीशु नाम से। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अगर आपको सुइसाइड करने का मन करता, शायद आपकी माँ के पेट में आप थे और आपका माँ को लगा कि वो सुइसाइड कर ले, ओह आई ब्रेक दैट कर्स ऑफ सुइसाइड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Oh Lord, set my people free, let my sons and daughters free, set me free Father in the name of Jesus Christ। अगर आपके बचपन में कोई गलत चीजों को आपने देख लिया, आपके संग अगर कोई शोषण किया था, आपके संग कोई आपको डराया था, कोई आपको मारा था, आपके कोई परिवार के लोग, आज खुदा से क्षमा मांगे, कहिए प्रभु उस ट्रॉमा से, वो दर्द से, वो पेन से मुझे आजाद कर दो प्रभु, मुझे आजाद कर दो प्रभु। I break every trauma, I break every pain, I break every abuse from my life. God set me
me free, God. Set me free. Lord, set me free. मुझे आजाद कर दो प्रभु जी, मुझे मुक्त कर दो प्रभु जी, मुझे आजाद कर दो प्रभु जी। सारे ट्रॉमा, सारे फियर, सारे डिस्करेजमेंट, सारे वरीज को, सारे कंफ्यूजन को, सारे बैड इम्पैक्ट को मैं तोड़ देता हूँ यीशु नाम से। हालेलुया रबालबा। ओ लॉर्ड गॉड, अगर हमारे अंदर में कोई गलत चीज मैंने किया बचपन में परमेश्वर, अनजाने में प्रभु जी सेक्सुअल सिंस पे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे घराना को क्षमा कीजिए, मेरे बच्चों को क्षमा कीजिए, मेरे परिवार को क्षमा कीजिए, मेरे लोगों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। और उसके सारे ग्रिप को तोड़ देते यीशु नाम से। और शैतान तेरे मुंह के सामने दरवाजा को बंद कर लेते हैं प्रभु। पता नहीं जब हम बचपन में छोटे थे, मेरे माँ बाप मुझे किसके पास लेके गया, कौन मेरे सिर पे हाथ रखा, कौन मुझे मेरे लिए क्या मंत्र फूका प्रभु जी, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं छोटा था, बचपन में था। हे परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मुझे उस अभिशाप से आजाद कीजिए। मैं आज उस अभिशाप को तोड़ देता हूँ प्रभु जी, और मेरे ऊपर तोड़ता हूँ, मेरी बेटियों के ऊपर तोड़ता हूँ, मेरे लोगों के ऊपर तोड़ता हूँ, मेरे कलीसिया के ऊपर मैं तोड़ता हूँ खुदावन। और कहता हूँ कि प्रभु मुझे आजाद कर दीजिए, और मैं द्वार को बंद करता हूँ यीशु नाम से प्रभु जी। अगर मैंने कोई गलत शब्द को इस्तेमाल किया बचपन में, बड़े होकर परमेश्वर किसी के ऊपर किया, कोई कर्ज को मैंने बुलाया प्रभु, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, हमें माफ कीजिए, मुझे आज़ाद कीजिए, मेरे बच्चों को आज़ाद कीजिए, मेरे बच्चों को आज़ाद कीजिए, मेरे घराना को आज़ाद कीजिए, मेरे परिवार को आज़ाद कीजिए, इस मिनिस्ट्री को आज़ाद कीजिए, हमारे आत्मिक बच्चों को आज़ाद कीजिए, आत्मिक संतानों को आज़ाद कीजिए प्रभु, हमें आज़ाद कीजिए प्रभु। सब कुछ तेरे सामने में खुली किताब है प्रभु जी। हे पिता, हमें शांति चाहिए प्रभु जी, प्रभु जी आपकी उपस्थिति चाहिए हमारी जिंदगी में प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ अब से प्रभु ये शांति में हम लोग वास कर पाए, ये चर्च, ये अनुग्रह परिवार प्रभु ये शांति को अपने जीवन में पा सके, अपने घर में पा सके, अपने परिवार में पा सके, अपने जीवन में पा सके। ओ परमेश्वर, यहाँ के बच्चे बढ़ने लगे, फलवंत होने लगे, आशीषित होने लगे परमेश्वर जी, दया कीजिए प्रभु। और हम लोग सक्सेसफुल बनने चाहे पाए प्रभु, हम तेरी दुल्हन है प्रभु, और तेरी दुल्हन सजेगा प्रभु, तेरी दुल्हन सजेगी परमेश्वर, तेरे दुल्हन साफ होगा, सिंगार लेगी प्रभु जी। हे परमेश्वर प्रभु, खुदा जिसे तू छू लेता है वो आजाद हो जाता है। कमा शता रिबे शता, इस वक्त जिसे तूने छुआ है खुदा, वो उस बंधुआई से आजाद हुआ है। जिसने इस वक्त तुझसे अपने छुटकारे को मांगा है खुदा, वो आजाद हुआ है, और वो बेखौफ हुआ है, अर्थात वो कॉन्फिडेंट हुआ है, वो बल पाया है, उस पे खुदा तेरा करम खुला है। स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड, जब तू हमें छूता है हम आजाद हो जाते हैं। हम दिन से लेकर रात तक आंसू बहा सकते हैं खुदा, लेकिन फिर भी हमारी आज़ादी नहीं आती। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें छू लेता है हम आज़ाद हो जाते हैं। सबको अपने पेट पे हाथ रखो और अपनी आज़ादी मांगो। खुदा, हर चीज़ जो मुझे बांधे हुए है, सिखिया ना यमा से थे यह यहाँ रोहो शता रबे शखरबा सनना शेतरेबे, पिता एक एक बंधुआई से आजाद कर दे। वहां छुपे हुए गांठ को मैं खोल देती हूँ यीशु नाम से, एक एक बंधन तोड़ देती हूँ यीशु के अभिषेक के अधीन आकर। अंधकार की शक्ति मैं तुझे डांटती हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता की सामर्थ, पिता की बल, पिता का अभिषेक खोलती हूँ जो जुआ तोड़ता है। एवरी पर्सनालिटी डिफॉर्मिटी हील हो जा यीशु नासरी के नाम से। हर चंचल मन स्थिर हो जा यीशु नासरी के नाम से। हर डिवाइडेड माइंड, कंफ्यूज्ड माइंड पवित्र आत्मा के अधीन आ जा। स्पिरिट ऑफ यूनिटी में आ जा यीशु नासरी के नाम से।
चेन, जंजीर, शैकल टूट जा, तू बंधुआई से आजाद हो जा यीशु नासरी के नाम से। हर भारीपन की आत्मा तुझे छोड़कर पाताल चला जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा यहाँ लोग छुटकारा पाने आए हैं, तेरे नाम से छुटकारा पाने आए हैं। और हर किसी जिसका प्रॉब्लम आज यहाँ आइडेंटिफाइड हुआ है, खुदा मैं घोषणा करती हूँ कि पवित्र आत्मा उन्हें आजाद कर रहा है। खुदा बाप तू उन्हें आजाद कर रहा है, क्योंकि जिसे तू छू लेता है वो अलौकिक रीति से आजाद हो जाते हैं। जिसे तू छू लेता है खुदा, वो बेखौफ हो जाते हैं। खुदा तेरा रहमो करम उन पर हुआ है खुदा, और तू हमारे जीने की वजह है खुदा। तेरे कारण हम जिंदा है, तेरे कारण हम आजाद हैं, तेरे कारण हम बंधुआई से छुड़ाए गए हैं, तेरे कारण हम अभिशाप मुक्त हुए हैं, तेरे कारण अंधकार हमारे जीवन से दूर हुआ है। खुदा मैं विश्वास खोलती हूँ, आशा खोलती हूँ, उम्मीद खोलती हूँ। तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। आज जिस किसी ने भी विश्वास किया है कि यीशु ने उसे चंगा किया है, वो यहाँ से चंगे होके जा रहे हैं, आज़ाद होकर जा रहे हैं, मुक्त होकर जा रहे हैं, फ्री होकर जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदा सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हर कोई जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये आज हमारा पहला दिन है हमारे 15 डेज फास्टिंग का। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड इसी टॉपिक पे प्रचार करेंगे, लेकिन मेरा टॉपिक ही था फर्स्ट 7 डेज मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड पे प्रचार करने वाली थी, अर्थात किन चीज़ों को शैतान ने आपको दिया है। और आखिरी 7 दिन में प्रचार करने वाली थी पवित्र आत्मा आपको क्या दे सकता है। इसलिए जो हमारे संग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े रहे। हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे हम शाम को मिलेंगे प्रार्थना में। आप हमारे संग प्रार्थनाओं में जुड़ सकते हैं। हम पहला 1 सप्ताह लेंगे कि शैतान ने जो हमें दिया है उसे हम कैसे तोड़ सके, और अगला आखिरी सप्ताह हम जुड़ेंगे पवित्र आत्मा के संग कि वो हमें क्या दे सकता है या उसने हमें क्या दिया है और उस पे हम कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। तो हमारे संग फास्टिंग प्रेयर में जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू। डैनियल फास्टिंग प्रेयर के समान इसमें कोई नियम नहीं है। आप कोई भी भोजन खाकर अपना फास्टिंग प्रेयर तोड़ सकते हैं, लेकिन आप उपवास में ज़रूर रहें और आप प्रार्थना ज़रूर करें। अपने आप को मोबाइल और इंटरटेनमेंट इन सारे चीज़ों से अलग रखें, प्रार्थना में मन लगाएं। अगर आपको फास्टिंग में प्रॉब्लम है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है या दवाई खाते हैं, लेकिन प्रार्थना में आप ज़रूर रहें। गॉड ब्लेस यू।